Haji, so what this lecture is about, it's about microcontrollers. Okay, so first of all, we need to understand what is a computer or why we need a computer. Why do we need a computer? Okay, so the answer is to process data. Okay, so the explanation for this is the input data is coming through some devices into the computer. Computer does the processing and then it outputs the data back to the human operator or sends it to other computers over a network. Ultimately, डेटा इंसानों के काम का डेटा है और इंसानों को ही आउटपुट के तौर पे मिलता है. ठीक है. We also, when we process the data, it becomes information. ठीक है. एग्जाम्पल ये है कि अगर डेटा इनपुट डेटा आपके पास हो and these are just numbers in this case 2 and 3, or maybe we can put some more. So process करना है तो we normally can add, subtract, multiply. There are arithmetic operations or logic operations. Okay, so arithmetic or logic operations. We perform these operations on data. For example, in current case, we're just adding them. Okay, and when we add them, so let's say this become 10. This 10 is information, and this has to be presented back to humans. That 2, 3, 5 also came from the humans. अब बात यह है कि डेटा को एंटर कैसे किया जाए. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव जितने डेटा के टाइप्स पॉसिबल हैं उतने ही डिवाइसेस पॉसिबल हैं. डेटा कुड बी अल्फान्यूमेरिक, डेटा कुड बी वॉइस, डेटा कुड बी इमेजेस, डेटा कुड बी वीडियोस. ठीक है. And these alphanumeric numbers normally represent signals. Okay, numbers, signals. Alphanumeric, which is a mix of textual data and numbers, alphabets ABC and numbers. And अब कंप्यूटर के अंदर इस डेटा को एंटर कैसे किया जाए. तो टू एंटर दिस डेटा, नंबर्स के लिए या सिग्नल्स के लिए वी हैव सेंसर्स. ठीक है. अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए वी यूजुअली हैव कीबोर्ड जिसके ऊपर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं. वॉइस के लिए वी हैव माइक्रोफोन. Images के लिए we have camera, video के लिए we have camera, and sometimes the data might be coming through a network from other computer. ठीक है. Or we might be retrieving the already stored data from the storage, from the hard drive, or from the SSD, or from some cloud or some other storage platform. Here, to process, the device we need for processing is called a CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Central Processing Unit. Normally, you call this guy a Central Processing Unit, but this is not correct. जो भी आपका ये entire this is just a casing which holds these input devices, mostly processing devices and all together. But when I talk about the CPU, I just talk about this chip there, this one. Okay, on side 5, I mean this chip I'm talking about, the one that you see here. Okay, so this device does not exist in isolation. So let's say I put a reference to this and a reference. Okay. And similarly, nowadays we have GPUs. So GPUs is for processing very huge amount of data, whether that is a gaming data, graphic coming from graphics, or generated through graphics, or it's a video. Okay. Not necessarily video. It's for to process huge amount of data. Huge amount of data. Okay. To output the device, to output the data, we need screens, monitors, displays, printer, Wi-Fi, or we can send it to storage. Now, if I can categorize all the devices inside a computer, so there could be CPU, storage devices, there could be RAM, there could be hard disk,
processing this one is called processing devices. Okay, now we have input output devices. I'll put them in one category. We already named like keyboard, microphone, camera, and output devices like printer, monitor, etc. And then we have interconnecting devices, because these devices are electronic devices. So there must be some PCBs, printed circuit boards which holds these all devices together, which connects these all devices together. So you already know what a motherboard how a motherboard looks like. So this is your motherboard, and then uh, it can have the RAM, it can have the hard drive, the places for hard drive to connect. It can have different slots through which you can connect maybe sound card or network card or other PCBs. So it's a combination of, it's a collection of all the devices on a single motherboard, a printed circuit board, which is the mother of all the boards. So that is how it looks like. And then uh, the last category is we can have networking devices. For example, we have a Wi-Fi module or device like a dongle or something, a wireless or wired Ethernet device, Ethernet card we call it, uh, Bluetooth device, and this is how we communicate with other computers. So these are 5 categories of devices: processing, storage, input output, interconnecting and networking. इसके अलावा आपके जहन में कोई डिवाइस है तो बताएं. But these are all the devices that you can see inside a computer. And when I say computer, so I can have a personal computer, like a tower PC, you could call it, or a desktop PC, or a laptop. These are mostly. For example, I would say these are not all the categories. There could be server PC, there could be other supercomputer, but these are the devices that you should expect inside a computer. So any questions so far? So I have defined a computer very crudely. It's a very crude definition of what a computer is, devices, and this. But now I'm coming to a microcontroller. So what is a microcontroller? So microcontroller is a CPU, I/O devices, storage device, storage devices, and interconnecting devices. Yeah, we call them yeah, interconnecting devices. और इसको अगर मैं simply कहूँ ना, so it's a complete computer on a single chip. That's all. अब जाहिर बात है एक चिप के अंदर आपका कीबोर्ड तो नहीं आ सकता. एक चिप के अंदर let's go through each one of these devices. क्या माइक्रोकंट्रोलर के अंदर CPU होता है? तो yes. So I'll say it has a CPU. अब चिप के अंदर चिप है, CPU का चिप माइक्रोकंट्रोलर के चिप के अंदर है. तो अगर मैं आपको एक माइक्रोकंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम दिखा दूं. Let's see what other question we have. No, this is not a question. So let me put simply a diagram like this. ठीक है? तो this is the CPU. ये एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर की दुनिया आपको दिखाई जा रही है. ठीक है? इसको भी अगर मैं थोड़ा सा इस तरह देखूं तो this is a much better one. Let me put this link here. ठीक है? So microcontroller and reference number 2
How is it different than a CPU? So we can put this here, link here, which you can verify later on. So the basic component of a microcontroller look like this. So now we have input output devices. अब ये chip हैं, circuits हैं inside a single. So if I show you the Arduino microcontroller, Arduino तो एक PCB है ना, एक मदरबोर्ड टाइप है, लेकिन Arduino के अंदर जो main microcontroller chip है, let me show you that. So this is the microcontroller that you see here. This one, this, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 8 mil 8 मेगा 8 मेगा 328p, ये काला वाला, this one. सिर्फ ये एक IC, it's a single chip which qualifies the definition of a complete computer. जाहिर बात है ये, इस पे आप गेम नहीं खेल सकते, इस पे आप वीडियो नहीं चला सकते, इस पे आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं स्टोर कर सकते, थोड़ा बहुत एक आध कमांड यू कैन, इस पे इसके साथ आप डायरेक्टली प्रिंटर नहीं बड़ा कनेक्ट कर सकते, तो ये लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए है, इसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहेंगे। ये किसी डिवाइस के अंदर हम एम्बेड करते हैं, किसी स्मार्ट फैन के अंदर, किसी स्मार्ट वॉशिंग मशीन के अंदर, किसी स्मार्ट सीएनजी स्टेशन पे, कि भाई हमें पता चले कितने लीटर हमने फ्यूल दिया है और कितने पैसे बने हैं, ठीक है। ये किसी गेट, स्मार्ट गेट पे हम लगा सकते हैं कि भाई सामने दरवाजे की कोई आए तो दरवाज़ा खोल लो वरना मत खोलो। ये हम रिटेल पे लगा सकते हैं कि भाई कोई डिवाइस है, मैं स्कैन करता हूँ कितने का है, एंड सो ऑन। तो ये लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ये स्प्लिट के अंदर लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि किसी सेंसर से डेटा लेता है। जैसे सेंसर उसको बताता है कि इस रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और आपने स्प्लिट को सेट किया हुआ है कि भाई कमरे का टेम्परेचर आपने 16 करना है। नाउ द माइक्रो कंट्रोलर विल हैव टू कंट्रोल द कूलिंग as long as the desired is not equal to the actual. तो एक्चुअल आपका 30 होगा, फिर ये कूलिंग करता रहेगा, 29 पे लाएगा, 28 पे लाएगा, ऑल द वे जब तक ये आपके सेट पॉइंट पे नहीं आ जाता। तो ये वो कंट्रोलर है जिसकी अभी तक हम बात करते थे ब्लॉक डायग्राम में, जिसके आगे एक्चुएटर लगे होंगे और जो फीडबैक लेता है फीडबैक के थ्रू, किसी सेंसर के थ्रू, ये स्पीड भी कंट्रोल कर सकता है, ये टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकता है, ये फ्लो भी कंट्रोल कर सकता है, ये प्रेशर भी कंट्रोल कर सकता है, एंड सो ऑन। तो जब प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की आप बात करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस फिर प्रेशर के करस्पॉन्डिंगली होंगे, प्रेशर सेंसर होगा, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस जिस पे आपको डिजायर्ड प्रेशर हम जनरेट करके देंगे, वो फिर जाहिर बात है कोई मॉनिटर नहीं होगा, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई डिस्प्ले, वो भी आप लगा सकते हैं, बट इट्स एक्चुअली कनेक्टेड टू अ प्लांट थ्रू विच वी इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर, जिसको हम एक्चुएटर कहते हैं। वो कोई वाल्व होगा, कोई कंप्रेसर की कोई कंट्रोल होगा, एंड सो ऑन। स्पीड कंट्रोल के केस में वी कनेक्ट दिस टू अ मोटर, फ्लो कंट्रोल के केस में वी कनेक्ट दिस टू अ वाल्व, लेवल कंट्रोल के केस में वी कनेक्टेड टू अ वाल्व, जो पानी को आगे जाने देगा या नहीं जाने देगा। सो वी आर लर्निंग अबाउट दिस डिवाइस। Arduino इस पूरे बोर्ड को कहते हैं, याद रखें, दिस पूरा बोर्ड इज नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, जस्ट दिस वन चिप इज अ माइक्रो कंट्रोलर। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है। आपने ऑलरेडी इस पे लैब्स किए हैं, मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको देता हूँ ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस आए कि सर ये हमने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, और सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी इस बोर्ड के अंदर मैं आपको मजीद, अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप, इट हैज CPU, it has input output devices, yeah, अब डिवाइसेस से ज़्यादा
मौजूद लफ्ज़ यहाँ पे सर्किट से है, क्योंकि चिप के अंदर की बातें हो रही है ना। अब डिवाइस से तो आपके जहन में माइक्रोफोन आएगा, मॉनिटर आएगा, कीबोर्ड आएगा, तो वो डिवाइसेस नहीं, वो सर्किट है जो आपके इनपुट डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर रैम है, रोम है, तो हम कहेंगे इसके अंदर स्टोरेज है। इट हैज स्टोरेज डिवाइसेस। और रैम और रोम, हार्ड डिस्क नहीं, एसएसडी भी नहीं, ये वो इतना सुपर हैवी कंप्यूटर तो है नहीं। ठीक है। इट्स तो डिफरेंस बिटवीन द टू, difference between a microcontroller and a microprocessor and microcontroller। ठीक है। सो मैं इसको यू सी लिखूंगा ताकि मैं बार बार टाइप ना करूं। यू सी, यू पी और यू सी, माइक्रो, यू फॉर माइक्रो ना। ठीक है। सो यू पी इज ओनली प्रोसेसेस डेटा। इसका मतलब है कि इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से कनेक्ट करने होंगे, स्टोरेज इसके साथ अलग से कनेक्ट करनी होगी। माइक्रो ऑल अदर डिवाइसेस must be connected separately। ठीक है। माइक्रोकंट्रोलर is processing, does processing as well as control। ठीक है। तो it is usually, अच्छा, it is usually found as part of a computer। ठीक है। And it is usually found as an embedded computer, not part of a computer, as an embedded computer built into a standalone smart device. For example, washing machine, for example, smart fan, for example, what else? Mm, a lot of applications in, yeah, split or air condition, what we call it, air conditioner। मॉडर्न ज़बान में इसको हम स्प्लिट कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है। तो और फिर ये सीपीयू के अंदर की दुनिया है कि व्हाट इज इनसाइड द सीपीयू। तो सीपीयू नॉर्मली हैज थ्री पार्ट्स, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल, बट जनरली आपको बताता हूँ कि चाहे सीपीयू कंप्यूटर के अंदर हो या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हो। ठीक है। सो डिवाइसेस कैटेगरीज इधर डाल देते हैं। What are the devices inside a CPU? तो arithmetic logic unit, ये मैंने ऊपर हवाला दिया था कि CPU क्या करता है। By processing we mean to perform arithmetic or logic operations on data। और CPU के अंदर ये काम करता है ALU, ये एक अलग सी यूनिट है, arithmetic logic unit। दिस गाय, ये सिर्फ मैं CPU की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर रजिस्टर्स हैं to store data during processing। ठीक है। और इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है to control exchange of data to from the CPU। ठीक है। CPU से, अच्छा, CPU से बाहर डेटा जाएगा या CPU के अंदर डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल, ये माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस को से डेटा लेना चाहता है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि सिर्फ इनपुट और डिवाइस को ऑन रखे, बाकियों को बिल्कुल ना सुने, उसको सिग्नल भेजे कि भाई आप लोगों ने डेड रहना है।
आप लोगों ने ऐसे बिहेव करना है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड ही नहीं हो, क्योंकि मैं सिर्फ इनपुट डिवाइस से डेटा लेना चाह रहा हूँ। सिमिलरली जब आउटपुट डिवाइस को डेटा भेजेगा तो कंट्रोल यूनिट सिर्फ आउटपुट डिवाइस को एक्टिवेट करेगा, बाकियों को कहेगा कि भाई आप लोग ऑफ रहें। ठीक है, वो बाकायदा एक सिग्नल इनको भेजता है। इस तरह जब रैम से डेटा उठा के रीड करना चाहेगा एलयू में, अगर आपने जिस डेटा को अरिथमेटिकली ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या उसको जो भी करना है, तो फिर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिसेबल करना पड़ेगा और सिर्फ रैम को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि वहाँ से डेटा आए। वहाँ से डाटा पहले रजिस्टर्स में आता है, स्टोर होता है, फिर वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाके प्रोसेस होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वापस रजिस्टर में सेव होता है, और फिर यहाँ से आपने उसको भेजना होता है जो भी आपने करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग। Program is a list of instructions. जी जी। जी जी। तो ये ऐसा है कि माइक्रो कंट्रोलर में मैं आपको कहूँ कि यार आपने सिर्फ टेम्परेचर रीड करना है, उसको प्रोसेस करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है डिज़ायर को एक्चुअल से एंड सो ऑन, और फिर सिर्फ टेम्परेचर को ही कंट्रोल करना है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो सिर्फ टेम्परेचर का डेटा आ रहा है, वो भी दो तीन नंबर आ रहे हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर और एक डिज़ायर टेम्परेचर, उनको सब्ट्रैक्ट किया, पता चला कि भाई कूलिंग चाहिए और कंप्रेसर को ऑन किया, बस। अब इसमें डेटा तो बहुत थोड़ा है ना, कितना डेटा है इसमें? सिर्फ टेम्परेचर आपने टेम्परेचर सेंसर से लेना है। तो इसके लिए मैं माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करूँगा, क्योंकि उसका काम कंट्रोल करना है और बड़े लिमिटेड डेटा को हैंडल कर सकता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जो कि यही काम भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर रीड करो, टेम्परेचर कंट्रोल करो, जो कि आप एट द सेम टाइम उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख भी रहे होते हैं, एट द सेम टाइम कुछ म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हो सकता है साइड पे कुछ वीडियो भी चलाई हो, चल रही हो, फेसबुक पे भी कुछ ओपन किया हो। तो आप एट अ टाइम 10-15 प्रोग्राम्स आपने खोले हुए हैं, हर प्रोग्राम डिफरेंट काम करता है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ऑडियो डेटा भी चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रहा है, वीडियो डेटा है, ग्राफिक आपने मूवी भी लगाई है, उधर आपने जी टेम्परेचर भी किसी रूम का कंट्रोल करना है, कंप्रेसर आपने डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है किसी तरह। तो ये इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स और वर्सटाइल डेटा को हैंडल करने के लिए फिर या तो 10-15 माइक्रो कंट्रोलर लगाएं, और या फिर एक सीपीयू लगाएं, उसके साथ बाकी डिवाइसेस लगाएं। तो मतलब ये सेकंड केस में जब आपके पास जनरल पर्पस प्रोसेसिंग चाहिए, जिसमें डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी अमाउंट का हो सकता है, जीबी में हो सकता है, मेगाबाइट्स में हो सकता है, गीगाबाइट्स में हो सकता है, टेराबाइट्स में हो सकता है, तो फिर आप माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं यूज़ कर सकते। माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत लिमिटेड डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मैंने इधर नीचे डिफाइन किया है कि माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। अब आप इसको ट्रेडिशनल सेंस में तो कंप्यूटर डिफाइन नहीं करेंगे ना कि भाई सब कुछ कीबोर्ड अलग हो, रैम अलग हो वगैरह, लेकिन अगर कंप्यूटर की आप जनरल डेफिनेशन करें ना, मैंने बहुत ज़्यादा जनरल डेफिनेशन की है ऊपर, कि भाई डेटा आ रहा है और उसको प्रोसेस करना है, ये कंप्यूटर का काम है। तो माइक्रो कंट्रोलर ये तीनों काम करता है, डेटा इनपुट भी लेता है और प्रोसेस भी करता है और उसको आपको आउटपुट भी दे सकता है। और इसके लिए अर्डुइनो में या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में ये पिन्स हैं जो नंबर्ड हुए हुए हैं, पिन नंबर 0, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऑल द वे टू 13,
फिर नीचे पिन नंबर A0 to A5, फिर आप नीचे देखें कुछ पिन्स हैं। इस पे आपने बाहर से अगर यूज़र से सेंसर से डेटा लेना है, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल के केस में ज़ाहिर बात है टेम्परेचर कंट्रोल तो आपके इस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं हो सकता। टेम्परेचर सेंसर बाहर होगा, इसको किसी पिन पे आप कनेक्ट करके सिर्फ डेटा भेजेंगे और डेटा किस फॉर्म में होगा, वो होगा न्यूमेरिकल डेटा 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस, या इवन फ़ारेनहाइट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंसर। वो डेटा फिर इन पिन्स के थ्रू आएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, जिसमें हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उस डेटा को। जैसे 8 अगर इसके अंदर एंटर होगा 8, तो 8 अगर बाइनरी में हम कन्वर्ट करें, मैं एग्जांपल लेता हूँ टेम्परेचर कंट्रोल, यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। इनपुट डेटा आएगा फ्रॉम अ टेम्परेचर सेंसर, और फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त रूम का टेम्परेचर सेल्सियस। अब ये 30 मुझे मिलेगा बाइनरी फॉर्म में। 30 इन बाइनरी फॉर्म इज 30 इन बाइनरी फॉर्म में होगा 2 के पावर में लिखे ना, तो 0 + 2 + 4 + 8 + 16, तो 16 और 8 24, 24 और ये 30। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूं तो 1 1 1 1 0, ठीक है। ये 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। तो ये मेरे पास, लेकिन अगर इसको मैं 8 बिट्स के फॉर्म में लिखूं तो आई कैन हैव सम zeros also। तो ये 8 बिट्स आ गए, ठीक है, 8 बिट्स इन बाइनरी फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर मैंने टेम्परेचर सेंसर से 8 बिट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को अर्डुइनो को देने हैं इधर। मैं आपको कहूँगा कि यार हर वन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी वायर में 5 वोल्ट होने चाहिए, 5 वोल्ट उस पर होने चाहिए मेजर करने। इलेक्ट्रिकली 5 वोल्ट भेजूंगा मैं किसी वायर पे, तो दैट विल रिप्रेजेंट बाइनरी 1। दूसरे वायर पे भी +5, तीसरे वायर पे भी +5, चौथे वायर पे +5, बाकियों पे 0। अब मुझे 8 वायर्स चाहिए, 8 पिन्स चाहिए अर्डुइनो के, जिसके ऊपर ये 30 किसी तरह माइक्रो कंट्रोलर के अंदर चला जा सके। ये अर्डुइनो बोर्ड आपको सहूलत देता है, ये एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर की एक्सटेंशन है। अगर पिन नंबर 3 के साथ आपने कुछ कनेक्ट करना है तो एक्चुअली ये सीपीयू का पिन नंबर 3 इधर है या इधर होगा, इनमें से कोई पिन नंबर 3 होगा। वो बोर्ड के अंदर प्रिंटेड वायर्स गई हैं जो कि आपको आसानी देती हैं कि चलो जी आपने डिवाइस कनेक्ट करना है तो बाहर से कनेक्ट करें। इंडस्ट्री में जब आप माइक्रो कंट्रोलर देखेंगे तो पूरे के पूरा अर्डुइनो बोर्ड नहीं होगा, सिर्फ इस तरह के चिप्स होंगे। अब ये एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर है इस तरह, इसके अलावा मोटरोला का माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, इसके अलावा जी पिक माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, इसके अलावा नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के माइक्रो कंट्रोलर हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो माइक्रो कंट्रोलर बनाती हैं। आपके एक गाड़ी के अंदर डजन्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं। कोई विंडो को कंट्रोल कर रहा है, कोई स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा है, कोई टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, कोई टायर के प्रेशर को कंट्रोल या कम से कम मॉनिटर कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो वो जाहिर बात है फिर जापान की गाड़ी है तो उन्होंने अपने माइक्रो कंट्रोलर लगाए होंगे, ठीक है। इस तरह इंडस्ट्री में भी तो ज़रूरी नहीं कि आपका माइक्रो कंट्रोलर हमेशा अर्डुइनो ही हो। अर्डुइनो तो माइक्रो कंट्रोलर है ही नहीं, अर्डुइनो तो बोर्ड है, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर एटमेल का लगा हुआ है। और उसका अगर एग्जैक्ट मॉडल आईसी का नंबर आप रीड करना चाहें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 8MEGA328P, 8MEGA328P। वो माइक्रो कंट्रोलर है जो कि अर्डुइनो के अंदर लगा हुआ है। तो मैं
इधर लिखूंगा कि एग्जाम्पल ऑफ microcontrollers in the industry, 8 mega 328p, uh, used in Arduino boards. ठीक है, इसके अलावा जी मोटरोला की भी हैं, ये मैन्युफैक्चर है एट मिल, ठीक है, और इनके बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम दैट दे मेक, ठीक है। इसके अलावा जी मोटरोला के हैं, इसके अलावा जी माइक्रो कंट्रोलर होता था एक ज़माने में, जी तो नहीं उसको कहते थे, लेट मी सी, ठीक है। तो लेट्स सी सम माइक्रो कंट्रोलर, AVR के माइक्रो कंट्रोलर हैं, 8051 तो बड़े पुराने ज़माने का है। ये है माइक्रोचिप, ARM माइक्रो कंट्रोलर है, MSP टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है, वगैरह वगैरह। ये फिर आप बाद में फ्यूचर में कभी आपके सामने आए। वैसे आपसे कोई माइक्रो कंट्रोलर बीइंग एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर नहीं प्रोग्राम करेगा, लेकिन बहरहाल कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल पहले लिखना था ये, हम माइक्रो कंट्रोलर, ओके, we have been reading about control of industrial processes. For example, uh, we've been reading about process control. Yeah. For example, flow control, pressure control, level control, speed control, temperature control, and so on. Okay. We need, we have studied control algorithms such as PID. Okay. It's a math, ठीक है। इट्स मैथमेटिकल फार्मूला जो कि आप कहते हैं इंटीग्रल ऑफ error plus derivative of the error plus proportion to the error, and you just generate a control command. So it looks like this. U is yeah, अब मैं इंटीग्रल ऑफ एरर वगैरह वगैरह अभी मैं टाइप नहीं कर सकता मैथ्स, ठीक है। We need a device that implements this control algorithm to control a process. These devices could be generally include a PLC. You have already might have some idea about the PLCs, microcontrollers, even computers, embedded computers, yes, industrial computers, industrial PCs, ठीक है, ये इस तरह दिखते हैं। So they might look something like this. Mostly you will see them in the industry. So ये हमारे कंप्यूटर से थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है कि मोस्टली चूंकि ये कंट्रोल पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देता है, यूएसबी के थ्रू, ईथरनेट के थ्रू, कैन बस के थ्रू, प्रॉफी बस के थ्रू, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जो भी नेटवर्किंग के बसेस मशहूर हैं, ठीक है। They could be in this form, ठीक है, they could be in any other form, for example this. अभी हम तो इस वक्त हम ये हमारा फोकस है कि हमें किसी ख़ास प्रोसेस में पीआईडी का एल्गोरिथम जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके इस डिवाइस को डिप्लॉय करना है किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। सो दैट्स द रीज़न वी आर स्टडीइंग माइक्रो कंट्रोलर। अदरवाइज सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर पे पूरे के पूरे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, पूरे सेमेस्टर के कोर्सेज। मैं मैकेट्रॉनिक्स में पढ़ा रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने यहाँ पे बहुत जनरल फ्लेवर देना है कि हाउ टू यूज़ अ माइक्रो कंट्रोलर फॉर कंट्रोल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इधर अगर आप आते हैं
तो अब आपने इसको बाइनरी फॉर्म में देना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपको टेम्परेचर सेंसर चाहिए और अर्डुइनो के साथ कनेक्टेड चाहिए तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। मैं ये it's a simple circuit which connects with pin number A0 है, I think A0, ठीक है। तो Arduino इसको 5 वोल्ट दे रहा है और ग्राउंड दे रहा है, ठीक है। Let's open it. So this is the temperature sensor that you see, the tiny one here. It's का model number है TMP36 और and we can connect it to a microcontroller, and this is the schematic diagram. This is how you would actually connect. तो अब नॉर्मली हमारे पास 8 जो बिट्स जाने हैं, लेट्स से टेम्परेचर सेंसर ने, मैं ये लिंक डाल लेता हूँ कि भाई हाउ a temperature sensor can be connected to a microcontroller, ठीक है। तो ये लिंक मैंने रेफरेंस नंबर 3 में डाल दिया। अब ये हमें पता है कि भाई इस चिप को ऑन करने के लिए इसको 5 वोल्ट भी देने हैं, इसको ग्राउंड भी देने हैं, आफ्टर ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। वो अर्डुइनो दे देता है। उसके लिए अर्डुइनो के अंदर इधर लगा होता है ग्राउंड पिन नीचे और 5 वोल्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, बॉटम पे ग्राउंड पिन है, 5 वोल्ट का पिन है। उससे आप बेशक इस पिन को इस सेंसर को पावर ऑन कर दें और फिर ये येलो वायर पे ये पिन A0 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी कंफर्म इट, कौन से पिन को जा रहा है, A5 है, नो A0 है ये, A0 पिन पे, क्योंकि टेम्परेचर एक एनालॉग सेंसर है, ठीक है। एनालॉग सेंसर का डेटा मुसलसल चेंज होते हैं, 30, 31, 30.5, 30.35, 35, 40, 41। अब ये डिजिटल में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए, क्योंकि ये डेटा है एनालॉग इन बाइनरी फॉर्म, 30 एनालॉग डेटा इन बाइनरी मीन डिजिटल। ये काम हमें कौन करता है? एनालॉग टू डिजिटल conversion is being done by another device called analog to digital converter. इसको ADC भी कहते हैं। This ADC is also usually built in the microcontroller chip. तो आपको अलग से वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ADC चिप अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट सेंसर लगा दें। पुराने ज़माने में माइक्रो कंट्रोलर आते थे जिसके अंदर ये ADC बिल्ट इन नहीं होता था, तो एनालॉग के पिन आपको नहीं मिलते थे। अब अगर ये आपसे एनालॉग डेटा ले रहे हैं, एनालॉग इनपुट, तो इसका मतलब है ADC इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन है। इट्स अ बिग फीचर। तो जितना भी एक माइक्रो कंट्रोलर आपको ज़्यादा एनालॉग पिन्स देगा उतना वो महंगा होगा, उतना आप कोशिश करेंगे कि वो आप ले लें। अगर आपके पास बजट लिमिटेशंस नहीं है, तो अगर एक ही बजट में 2 माइक्रो कंट्रोलर हैं, एक ज़्यादा पिन्स दे रहे हैं एनालॉग की, दूसरा कम दे रहा है, तो ज़ाहिर बात है आप ज़्यादा की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सेंसर्स इंडस्ट्री में एनालॉग सेंसर हैं, चाहे वो प्रेशर सेंसर्स हैं, चाहे फ्लो सेंसर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर सेंसर हैं, चाहे वो लेवल सेंसर्स हैं, दीज आर ऑल एनालॉग सेंसर्स। तो एनालॉग सेंसर के अंदर जब ये डेटा आएगा, तो अब आपने उसको बाहर से सिर्फ एक पिन पे कनेक्ट किया। 30 को लाने के लिए यू जस्ट नीड सिंगल पिन। अंदर जाके वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। जब CPU में पहुंचेगा तो वो बाइनरी फॉर्म में पहुंचेगा, क्योंकि CPU ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल डेटा, ठीक है।
एनी सीपीयू इज अ कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर सारे सिर्फ बाइनरी डेटा को प्रोसेस करते हैं, चाहे आपका इमेज है वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा, वीडियो है वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा, किसी भी सिग्नल का डेटा है बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो सीपीयू उसको प्रोसेस कर सकेगा, वरना नहीं। सिमिलरली जब वो डेटा को प्रोसेस कर ले, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर ले, तो वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा? अगर सीपीयू आपको डेटा प्रोसेस करके देता है और इंफॉर्मेशन आपको देता है तो वो किस फॉर्म में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल? एनीवन? कभी भी सीपीयू एनालॉग में ना डेटा समझता है और ना डेटा देता है, वो डेटा उसने लिया भी डिजिटल फॉर्म में और देगा भी डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको एनालॉग के फॉर्म में डेटा चाहिए तो जी, हाँ जी, तो जो दूसरा आपको डिजिटली डेटा देता है इंफॉर्मेशन, तो वो आप अगर एनालॉग में आपको चाहिए, एनालॉग में, तो उसके लिए ये वाले पिन हैं जिसके साथ साइन वेव बना हुआ है। कैन यू सी दिस? साइन वेव किन किन पिन के साथ लगा हुआ है? 5, 3, 6, 9, 10, 11। इन वाले पिंस को हम एनालॉग आउटपुट पिंस नहीं कहेंगे, ये हैं डिजिटल पिंस, लेकिन ये डेटा को इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं कि वो ह्यूमंस को एनालॉग लगता है। इसको PWM पिंस कहते हैं। PWM, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि डेटा को हमने इनपुट किया, ठीक है, प्रोसेस किया, प्रोसेस डेटा, फॉर एग्जांपल subtract actual from desired. Desired is your set point. Set point, for example, 16 degrees Celsius. Okay, and then you need to output data. Output data is again digital because it was processed by the CPU. CPU is a digital device. Now, in order to display it to human operators, टेम्परेचर आप किस तरह डिस्प्ले करते हैं नॉर्मली? या तो डिजिटल के फॉर्म में होता है, आजकल एलसीडी लगे होते हैं स्प्लिट में, या लेट्स से आपका कोई सिस्टम है जिसमें आपने इंडस्ट्री में टेम्परेचर डिस्प्ले ऑन SCADA, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से it's in it normally वो graphically, yeah, normally if it is you have to display it in this form, जिसमें बाकायदा टेम्परेचर ज़्यादा कम होता हुआ आप एक डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स एन एनालॉग डिवाइस। उस पर तो एनालॉग मीन इट्स, ये सिर्फ 1 and 0 नहीं है, ये 30 है, 31 है, या शायद इस फॉर्म में आप दिखाएं। दिस इज एनालॉग डिवाइस, द रीडिंग्स आर कमिंग, वी हैव 20.5, 20.9, 29.3, 29.5 एंड सो ऑन। तो ये एनालॉग डेटा है। अब इस एनालॉग डेटा को, in order to display this data, display information, which is a process data to human operator, it has to be converted into analog form again. ठीक है, usually a digital to analog converter, DAC, is used for this purpose. ठीक है, Arduino microcontroller does not use, does not have DAC, but it uses a technique called pulse width modulation, PWM, to display analog data
यूजिंग डिजिटल सिग्नल, ये बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका है टू डिस्प्ले एनालॉग डेटा यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स। ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मैं आपको अच्छा एक मिनट इधर PWM pins on Arduino board have a sine wave symbol shown next to the pin। ठीक है, अब PWM के थ्रू एनालॉग डेटा किस तरह होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ PWM टेक्निक टू डिस्प्ले एनालॉग डेटा। तो इधर देखें, अच्छा इस ये ग्रीन जो ब्लू जो आपको दिखता है ये डिजिटल सिग्नल है, या ये 1 है या ये -1 है, ठीक है, या 1 है या -1 है। अब इधर देखें, इधर 1 है वो थोड़े टाइम के लिए, फिर अगली बार ये 1 बना है उससे भी थोड़े टाइम के लिए, फिर अगली बार 1 बना है बहुत थोड़े टाइम के लिए, फिर अगली बार -1 बना है बहुत थोड़े टाइम के लिए, एंड सो ऑन। तो द ब्लू सिग्नल इज डिजिटल। कैन यू गाइज कंफर्म दिस? अब ये 1 जो है इधर तो हम इसको 1 कहते हैं, लेट्स से ये +5 है और ये माइनस ये 5 है, ये 0 है, या ये +2.5 है इलेक्ट्रॉनिकली, ये -2.5 वोल्ट है, या ये 1 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट है, लेकिन इसके बाइनरी सिग्नल डिस्क्रीट होता है, उसके दो ही लेवल्स होते हैं, या 1 या -1, या 0 या 5, या +2.5 या -2.5। बाइनरी सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं जिसके बाइनरी मीन दो लेवल्स होते हैं, लॉजिक लेवल्स होते हैं उसके दो। बाइनरी सिग्नल हैज़ 2 लॉजिक लेवल्स, ठीक है। अब ब्लू सिग्नल बाइनरी है कि नहीं, तो इसलिए है कि ब्लू सिग्नल या 1 होता है या -1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस ब्लू के में जी जी बी वी वोल्टेज है और बी टेम्परेचर है, ठीक है, दो सिग्नल हैं, ठीक है। ये वोल्टेज है जिसको हम वेरी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। चीटर्स में देता हूँ मैं थोड़ा सा वर्क करूँ, एक मिनट से, गिव मी अ सेकंड। चीटर्स कम हियर। हाँ जी, सो नाउ द ब्लू वन इज अ बाइनरी सिग्नल। हमने बाइनरी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के तौर पे इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन की बात है, ठीक है। तो देखें, इफ वी आर टू मेक जस्ट द मिडल पॉइंट्स ऑफ दिस, ठीक है, इट वेंट अप ऑल द वे। अब एनालॉग सिग्नल इतना फॉरन पीक को नहीं पहुंच सकता, ठीक है। इट वाज इंक्रीजिंग जिधर मिडल को पहुंचा द डिजिटल सिग्नल डिसअपियर्ड, तो इट स्टॉप्ड वेयर इट वाज। बाइनरी सिग्नल डिजिटल सिग्नल फिर अपेयर हुआ, फिर ये जहाँ था उससे ऊपर गया क्योंकि इट्स स्टिल +1, ठीक है, ये ऊपर राइज करेगा, फिर वो थोड़े टाइम बाद गायब हो गया, ठीक है। उसकी विड्थ कम है तो कम टाइम के लिए रेड सिग्नल ऊपर गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर अगली बार बहुत थोड़े टाइम के लिए इसकी इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको मज़ीद ऊपर जाने के लिए बहुत कम टाइम मिला, एंड इट स्टेड देयर। लेकिन नेक्स्ट वन इज -1, जिसकी विड्थ बहुत थोड़ी है, तो इट मीन्स थोड़े टाइम के लिए हमने इसको ड्रॉप करना है, फिर चूंकि वो 0 हो गया तो वी स्टे एट दैट लेवल। फिर दिस लेवल इज even further, the width is little more, so we got more time to come down, and then it becomes 0, so we stayed where we were,
and then we give another width, थोड़ा सा ज़्यादा width है negative, which mean come down for some more time, and then this. तो अगर आप रेड वेव को देखें तो क्या ये एनालॉग सिग्नल की शेप नहीं ले रहा? एनालॉग सिग्नल इसलिए है कि इस पे this point is 0.5, this point is 0.9, this point is 1, this is again 0.9, this is again 0.5, this is 0, this is minus 0.5. तो नाउ सिग्नल्स के लेवल्स दो नहीं है, सिग्नल के लेवल ज़्यादा है, कम से कम बाइनरी से ज़्यादा है. सो रेड इज़ एन एनालॉग सिग्नल. और अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको प्ले करूँ ये विड्थ के साथ, तो आई कैन क्रिएट इवन अ सिग्नल लाइक दिस विच इज़ अ परफेक्ट एनालॉग. से कुछ एक्स्ट्रा सर्किट लगा के ना, उसको फिल्टर कहते हैं, तो फिल्टर लगा के आई एम गेटिंग बिल्कुल प्योर साइन वेव. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कल को एक सिग्नल लेके उसकी डिजिटली विड्थ के साथ प्ले करके आई कैन क्रिएट अ बाइनरी सिग्नल. ये बहुत एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि विड्थ, पल्स के विड्थ को चेंज करके, मॉड्यूलेशन मीन चेंज, पल्स के विड्थ को घटा के या कम करके मैं एक एनालॉग सिग्नल आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ. दिस इज ओनली पॉसिबल ऑन द PWM pins of the microcontroller, Arduino microcontroller, on the one that you see here, because we digitally create a signal which to humans can be seen as an analog signal. So PWM is a technique of converting digital data into analog data. There are other techniques also. ठीक है, बाकायदा there are chips for digital to analog conversion, digital to analog conversion, converter ICs, जो कि बिल्कुल बाकायदा ये काम करते हैं. दे डू इट मच बेटर. ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा. ठीक है, वी यूज़ द PWM टेक्निक टू. तो अब अगर मुझे बताएं, अगर आपने मोटर को इस साइन वेव के साथ कनेक्ट किया, मतलब इस पिन के साथ जिस पे आप ये बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो द ब्लू वन इज अ डिजिटल सिग्नल. ठीक है, और मैं अभी आपको बताऊं अर्डुइनो में ये विड्थ आप कैसे मॉड्यूलेट करते हैं. तो इसके लिए कमांड है, लेट मी सी, एनालॉग राइट, पिन नंबर बता दें, और वो पिन नंबर याद रखें वो हो जिसके साथ साइन वेव हो. फॉर एग्जांपल 3. तो पिन नंबर 3 पे मैं एक PWM सिग्नल जनरेट करना चाहता हूँ, और अब बताओ उस पल्स की विड्थ कितनी हो, उस पल्स की विड्थ कितनी हो. तो उस पल्स की जो विड्थ है वो, अगर मैं चाहूँ कि पल्स पूरे का पूरा ऑन रहे हमेशा के लिए, तो आई विल डू लाइक दिस. 255 is the maximum value. This will give me the maximum duration, the maximum duration. ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर 0 दे दूं तो इट विल गिव मी द 0 सिग्नल. लेकिन अगर मैं इधर 155 दे दूं, 155 which is almost half of 255, half तो नहीं है, फिर 127 is almost a half, then the pulse width will be not mean, ये ड्यूटी साइकिल इसको कहते हैं ना. ठीक है, तो एनालॉग राइट ड्यूटी साइकिल. So if you look at this, ठीक है, तो if you give it a 0 value in here, so you are creating a pulse which is throughout 0. ठीक है, but if you give it 25% of 255, ठीक है, 25% of 255,
सो इसके लिए देना होगा 25 डिवाइडेड बाय 255, सॉरी ये स्टैंडर्ड कर लें, 25 divided by 255, it is 0.098, ठीक है, 0.098। तो इसका मतलब है कि 25% ड्यूटी साइकिल, तो 25% मीन मुझे लेना होगा क्वार्टर ऑफ 255, तो मुझे देना होगा इधर 63 रफली। तो 63 इधर दूंगा तो इट विल क्रिएट, एक मिनट, क्रिएट a square wave that has 25% duty cycle. Duty cycle is the on time. Duty cycle is the on time in persons. इसका मतलब है कि this signal पूरे duration में सिर्फ 25% के लिए on है, बाकी ज़ीरो है। ये 50% टाइम के लिए ऑन है फिर ज़ीरो है। ये 75% टाइम के लिए ऑन है फिर ज़ीरो है, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल इज़ द ऑन टाइम divided by full time, on time divided by full time in percentage। ये रेशो है जो इधर ड्यूटी साइकिल 100 इसलिए है कि ऑन टाइम और फुल टाइम इस एक साइकिल के अंदर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक स्क्वायर वेव सिग्नल है। अच्छा, 25% जनरेट करने के लिए वी गिव, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि भाई क्रिएट स्क्वायर वेव that has 50% ड्यूटी साइकिल, तो फिर आप इधर करेंगे 125 का 50% इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ 255, तो 0.5 multiplied by 255 is almost 128 or 127, तो 127 दे दें तो this will become 127। और अगर आपको मैं कहूँ कि 75% ड्यूटी साइकिल हो उसका, तो नाउ यू नीड, ये इधर ये नहीं था करना ना, ये 0.25% ऑफ 255, ठीक है। तो नाउ दिस विल बिकम 0.75 multiplied by 255 is 191, so give it roughly 191। So you can create any, it's not just 25%, you can create 26%, 29%, 31%, 65% and so on। जब अब इस सिग्नल के लिए मुझे कौन बताएगा रफली कि इसके PWM वैल्यूज क्या होंगी, तो कैन एनीवन टेल मी रफली कि ये सिग्नल इसका ड्यूटी साइकिल क्या है फर्स्ट साइकिल का, इसके ड्यूटी साइकिल क्या बन रहा है, एनीवन? नहीं 250 नहीं, इधर तो बस इसको देखो अंदाजे से, अगर ये 1 है या ये 100 है तो ये कितने परसेंट टाइम के लिए ऑन है जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताएं इस साइकिल में कितने टाइम के लिए ये ऑन है, 25%, 30%, 50%? गुड, सो आई थिंक इट्स 33%, ठीक है। ये दूसरे साइकिल में ये उससे थोड़ा कम है, तो अगर वो 33 है तो ये कितना होगा, ये हो सकता है 28 होगा, 27 होगा, ठीक है। तीसरे साइकिल में कितने टाइम के लिए ऑन है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, लाइक लेस देन 20%। तो इस तरह यू कैन जनरेट दिस। तो अगर
पूरे का पूरा साइन वेव आपने क्रिएट करना है Arduino PWM detailed example. So let me show you uh, wait, okay, let me show you the complete example अगर इन्होंने कहीं दिया हुआ है. या तो अभी ये देखें सिर्फ साइन वेव जनरेट करने के लिए ये इनकी ड्यूटी साइकिल्स हैं जी. ये ड्यूटी साइकिल्स हैं. क्यों? ये है 080. इसका मतलब है बाइनरी में 080 क्या हो जाएगा? Let's go to programmer mode. X80 in binary is 128. ये 128 है. फिर 83 बाइनरी में 131 है. साइन वेव बना रहे हैं ना. 131 है. फिर अब ये पीक पे जाएगा. ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है. 898C 8F92 ये पीक पे जा रहा है. अल्टीमेटली इन्होंने बनानी पूरी की पूरी साइन वेव है. तो लेट मी शो यू PWM sine wave created through PWM. So ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता PWM को पल्स के विड्थ को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं ताकि पीक पे पहुंचे. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करेंगे ताकि ये. तो दिस इज एन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. बहरहाल लेट्स कम टू अ फ्यू एग्जांपल्स रन करने के लिए. अब अगर आप ये साइन वेव लेट्स से ये उसको देंगे मोटर को. ठीक है. Arduino control motor PWM random words. तो मोटर की स्पीड जो होगी इट विल बी वेरी स्मूथ. ठीक है. तो इफ यू लुक एट दिस, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ देन विल स्टॉप इंशाल्लाह. तो अभी इफ आई कैन क्रिएट सम. अच्छा ये तो बेक के एफ दिखा रहे हैं. वी आर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर. अच्छा चलिए कोई नहीं. लेट मी शो एन एग्जांपल नाउ. Proteus. Have you guys tried Proteus lab में? हेलो. अच्छा तो Proteus में एक built in example है motor control. You go to the sample projects, you type motor control. AVR Proteus के अंदर जिधर जिधर आपको AVR नज़र आता है ना, this is Arduino's program. ठीक है. Arduino motor example या DC motor कह लें, सिर्फ DC motor. So now I don't want to discuss these transistors. ये ट्रांजिस्टर सिर्फ आप याद करें. Arduino जो करंट दे रहा है वो बहुत थोड़ा दे रहा है. That is not enough to drive the motor. तो आपको बीच में इंटरफेसिंग के लिए सर्किट चाहिए जो कि आपके थोड़े करंट को लेके एम्पलीफाई करे और फिर मोटर को दे दे. नंबर वन. नंबर टू, ये एच के शक्ल में ट्रांजिस्टर पड़े हुए हैं. इसको एच ब्रिज कहते हैं. एच ब्रिज किस तरह काम करता है? तो लेट मी शो यू. एच ब्रिज इस तरह काम करता है. जब
let's see, there's a very interesting animation if I can find it. Yeah, जब ये दो ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तो voltage is connected one way तो motor spins in one direction. लेकिन ये जो diagonally ये दूसरे ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तो motor spin gets the voltage in other direction and it spins the other way. ठीक है, तो this is also an animation I think. No, it's not. Yeah, this one is the one. Look at it. When you connect switch 3 and switch 2 and open the other one, the positive will connect with this and ground will connect with this. Motor will spin, let's say clockwise. But when you open S2 and S3 and close S1 and S4, then the negative is connected from the top and the positive is connected with the bottom, so the motor will spin in another direction. ठीक है, तो ये भी मैं लिंक इधर कनेक्ट कर दूँ कि जो भी हम एग्जांपल कर रहे हैं Arduino में, DC motor control, तो sorry, edge bridge is a configuration of transistors to control direction of rotation of motor. ठीक है, ये है नंबर 4, ये आप फिर देख सकते हैं. तो मार्केट में जो एज ब्रिज आपको मिलेगा, इट्स कॉल्ड L298D. डी मीन डुअल, दो मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें दो एज ब्रिज है. इज दी IC or module that implements edge bridge for small 5 volt DC motors. अगर आपने लैब में किया होगा, have you seen edge bridge in the lab? Anyone? अच्छा, तो उसमें Arduino नहीं था. अच्छा, चलिए कोई नहीं, खैर. तो एज ब्रिज अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो ये एज ब्रिज आपको चाहिए. अगर बाद लोग रोबोट खुद बनाते हैं एज अ हॉबी, तो Arduino robot L298D, so they connect it in this fashion. ये इसके ऊपर ये मोटर, ये देखें लगा हुआ है, दिस वन. इसके साथ दो मोटर कनेक्ट करने हैं. कैसे कनेक्ट करने हैं? दीज आर द कनेक्शंस. कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इट कंट्रोल्स, हेल्प्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ दिस. बाकी स्पीड आप कंट्रोल करेंगे PWM से, तो वो मैं अभी आपको कोड देने लगा हूँ. लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल फर्स्ट. इसका सोर्स कोड इंतहाई सिंपल है. ठीक है, ओके, इसको सोर्स कोड खैर है मैं अपना दे दूंगा. पोर्ट इस बिट, let me look at port B. हाँ जी, ठीक है, I'll write code for this. ठीक है, let's run it ताकि आप you understand this कि हो क्या रहा है. So the motor is spinning
and we're sending a PWM signal जिसका जिसका ड्यूटी साइकिल कितना बनता है, who will tell me? येलो वाले कितना ज़बरदस्त. So it's अगर इसको थोड़ा सा मैं अलाइन करूँ ना, हाँ जी, और टाइम इसको अगर आप फ्रीज कर देना, ये there is a way to stop it from spinning. ऑटो, लेकिन यहाँ से नज़र आ रहा है how many blocks are these total. The signal is I think 5 and out of 5 for 20% of the time it's off. तो PWM इसका 80% है और हमें जो रोटेशंस पर मिनट मिल रहे हैं वो तकरीबन 184, 183, 185 रोटेशंस पर मिनट मिल रहे हैं. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू प्ले विद दिस. ठीक है. तो मैं इसमें ये वाला कोड नहीं डाल रहा. ठीक है. ये इसमें आपके असाइनमेंट भी है तो यू नीड टू पे अटेंशन. ये बिल्ट इन एग्जांपल है. सर्किट में मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया. यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. ठीक है. अच्छा, ये रिसेट क्या करता है? अच्छा, reset तो इसको reset कर लेगा, but I thought we could change the speed with it. Let me try with this button. नहीं, ये सिर्फ उसको reset कर रहा है. It's not changing. Oh yeah, speed is increasing I think. Let me see where it goes maximum. 163. If I can reset it. चलें खैर, I'm gonna modify this program to change the speed also. तो इसके लिए जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, you need to pay attention. ठीक है. I'll open Arduino IDE. And I'll go to File, Examples, Analog, and Analog, Control. Let me find if I can find a basic example, otherwise, yeah, let's do it with Fed. I think with Fed I can also. मैं पहले try कर लूँ, then I can explain कि भाई program क्या कर रहा है. ठीक. So let's say we have connected. ये तो LED brightness कह रहा है. I'll call it save as motor control for 2022. ठीक है. And instead of LED I will say that LED is connected to pin number 9, but in our case the PWM pin is connected to pin number port B.3. Port B.3 Arduino का pin number 4 है. So I will write it as pin number 4. PWM pin is pin number 4. Instead of brightness I will say speed, and instead of LED motor is attached to how fast the motor is, and fed amount, how many points to fed. We'll say how many points to reduce the speed of the motor by. ठीक है. अच्छा, स्पीड अगर कमांड है तो मैं लिखूंगा स्पीड मोटर स्पीड. ठीक है. तो LED की जगह ब्रॉड PWM पिन, नॉट पिन नंबर 9, इट्स पिन नंबर 4. एनालॉग में ब्राइटनेस की जगह लिख रहा हूँ मोटर स्पीड, एंड LED में लिख रहा हूँ PWM पिन.
ठीक है, फिलहाल मैं उसको इंक्रीज नहीं कर रहा. I'll explain this next. ठीक है, and this also I'm commenting them out. So I'll just give motor speed of 128 here. Okay, so let me save this, and direction भी मुझे देना है. तो direction is, let's see what direction they give. Direction is yeah, 0C. So for direction I'll give yeah, for direction I'll use another pin, and motor dir initially, let's say it's 1. Yeah, it's true. High, yep, and then I say pin mode of the motor direction is output, because this is an I'm connecting an output device with it. Output motor is an output device, it's not an input device. Okay, and here I'll say digital write motor direction to high. Okay, so I'm expecting count it counts in one direction, but let's see. Sorry, this is motor number, pin number, direction is pin number 3. Okay, so let's see if there is an error in this. There is no error. And then I need to find the hex file of this कि भाई कंप्यूटर ने उसको किधर सेव किया, and then I give that to, so let's say where it will save it. Yeah, so the hex file has been saved at this point, I believe. Okay, it's not opening, so ये काम थोड़ा सा आप लोगों को तंग करेगा, बल्कि काम क्यों नहीं करते. Wait, I just copy this code and I hope it works, and I paste it here in Proteus, and let's see if I can build this. Build project, no, is not installed. अच्छा, चलिए कोई नहीं, इसको कहीं और. जी, उस उसी के पीछे फिर रहा हूँ ना. असल में मुसीबत ये होती है ना, अर्डुइनो ये. हाँ हाँ, किस तरह राइट पे ले जाऊँ. हाँ, वो मैं खोल रहा हूँ, लेकिन ये मुसीबत ये कर रहा है ना इस वक्त कि, चले मैं ये, असल में मसला आपको शायद नज़र आ रहा है. मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ ना, तो इट इज़, ये जो डायरेक्शंस है ना इसके, लेट मी डू इट अगेन, you will understand where I'm stuck. ये मैं अगर कॉपी करूं पूरे का पूरा पाथ, तो ये कम वक्त इसमें फॉरवर्ड स्लैश उल्टा डाल लेते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. मैं कर लेता हूँ खैर.
see users ऐप डेटा, बल्कि इसी तरह चले जाते हैं ना, ऐप डेटा, नो, see users this ऐप डेटा, बड़ा लंबा हो जाता है इस तरह, ऐप डेटा temp local temp Arduino build 936433 Arduino, अच्छा नहीं, temp के अंदर भी Arduino build, तो ये इसी से मैं बचना चाह रहा हूँ, बट इट्स प्लस ए, okay, yeah, this one, and then motor control, well, where is it, motor control file, this, yeah, this is the hex file, इसको मैंने देना है Proteus को, just click on this microcontroller 8 mega 16 and you put this, and now open it, and now it should be somewhere here, Arduino, wait, I do it again, copy this, it's not going into that, if I open it now, oh yeah, it shows a lot of garbage again, and तो वो मैं वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं इसको इसको सब इसको कॉपी करता हूँ ना, लेट्स फाइंड इट हियर, यहाँ आराम से हो जाएगा, हेक्स, लेट्स, ये, अब मुझे बताएं इसको खोलूँ मैं कैसे, हाँ जी, कर ले, इधर इधर, अच्छा, इट वर्क्स, अच्छा ज़बरदस्त, ठीक है, नहीं मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था, और क्लॉक फ्रिक्वेंसी में 8 मेगाहर्ट्ज से 16 कर लेता हूँ, लेट्स सी, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, तो लेट्स लुक एट इट, कि हमने गलती कहाँ की हुई है, ये मुझे लगता है उस पर खफा हो गया, क्लॉक पे, असल में ये 8 मेगा 16 मैंने उठाया हुआ है, ये इस तरह करना है, लेट्स डू दिस, हाँ जी, तो इट्स नॉट चेंजिंग द PWM ऑफ दैट, so PB in number 3, yeah, तो असल में मैंने मसला क्या किया हुआ है कि इधर 8 मेगा 328P है माइक्रो कंट्रोलर, और वहाँ पे है 8 मेगा 16, so I need to replace this with another microcontroller, so I go here,
असल में प्रोटियस में ये जो है ना, ये इस तरह दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये तो मैं इसको डिलीट कर दूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं these should go there। हाँ जी। अच्छा, नेट ठीक है। अच्छा, चलिए कोई नहीं, खैर है अभी, अभी भी ठीक नहीं है। हेलो। हाँ जी, असल में आपके साइड पे भी नेट शायद मसला कर सकते हैं। लेट मी ओपन अनदर सैम्पल प्रोजेक्ट। इसमें मुझे बहुत कुछ चेंज करना पड़ रहा है। डीसी मोटर कंट्रोल, अर्डुइनो मोटर एग्जांपल। तो ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि हमने ये वाला अर्डुइनो कभी यूज़ नहीं किया, तो ये मैं आपको इधर समझा दूँ। ये जो पिन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, IO8, IO9, IO10, ये अर्डुइनो के ये वाले पिन्स हैं, ये वाले। IO मीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो बस इतना सा फ़र्क है। तो अब अगर सारे एनालॉग तो ये है ना, AD0, AD1, ये सारे डिजिटल पिन्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि भाई ये PWM पिन है कि नहीं, तो ये 3 PWM पिन है। तो 3 इधर IO3 है, IO3 ये वाला, ठीक है। तो नहीं, PWM के साथ इधर डेल्टा लिखा होगा, इधर, इधर IO तो सबके साथ लिखा हुआ है ना। ये IO0 है उधर, ये IO1 है, ये IO2 है। अब IO3 PWM है, ये मुझे यहाँ से पता चला। किसी अर्डुइनो बोर्ड आपके हाथ में होना चाहिए। और फिर इधर IO3 आपका ये PWM पिन है, ठीक है। अभी वो साइन वेव, हाँ वो डैश कहें या साइन वेव कहें, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हो क्या रहा है, इसका जो कोड है, मैं कोड आपसे असल में एक्सपेक्ट करता भी हूँ और नहीं भी करता। आ, थोड़ा सा लंबा और है, कुछ लोगों को शायद बिल्कुल ही समझ ना आए इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन Arduino। लेकिन दिस एग्जांपल व्हाट इट डज इज इट कंट्रोल्स 2 DC मोटर। तो अगर आप मोटर ए का स्पीड बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो ए स्पीड इज़ 150 और बी अभी रोका हुआ है, तो बी का स्पीड में बी बटन से बढ़ा सकता हूँ, एंड इट गोज़ ऑल द वे टू 255, उससे ज़्यादा जाता नहीं है। दूसरे बटन से मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ, तीसरे से उसको मैं बिल्कुल ज़ीरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले वाले का कोड मैंने इसलिए उठाया कि वो थोड़ा सा इजी था। एक मोटर था, इसमें 2 मोटर है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। अर्डुइनो इसका हो, क्योंकि ये अर्डुइनो यूनो है ना। मुझे कैसे पता चल रहा है अर्डुइनो यूनो है? 8 Arduino 328 से पता चल रहा है। ये 328 वो माइक्रो कंट्रोलर है जो मैंने आपको उधर दिखाया है, ठीक है। तो लेट मी गिव इट अ ट्राई। मैं इसको सेव एज करता हूँ, Arduino मोटर कंट्रोल फॉर 2022, एंड नाउ इसमें थोड़े से मैं चेंजेस लाता हूँ, एंड द चेंजेस आर, आई डिलीट दिस वन, आई डिलीट द मोटर शील्ड, ठीक है। एंड नाउ आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट, आई एम ब्रिंगिंग द मोटर कंट्रोल सर्किट। आई होप इट, मेरा प्रोटियस क्रैश भी कर गया, लेकिन चलिए कोई नहीं। Actually, you know why does it crash? Okay, this one, motor, DC motor.
I need this whole circuit to paste there. This one. So edit, copy to clipboard, and open the other project which I called. अब उसको किधर ढूंढेंगे? I just saved it. DC motor. No, it's the same. The other one is चलिए कोई नहीं, उसको दोबारा सेव कर लेता हूँ. फाइल सेव प्रोजेक्ट इज, वो पड़ा हुआ है. File save project is this one, and now I delete this. सर्किट मुझे एक का चाहिए, प्रोग्राम मैंने दूसरे के लिए लिखा है. That's what I've done. And now Control V. I hope it works. And yeah, I brought this. Let's save it before it crashes again. And now, which one was the direction and which one was the PWM pin? तो इसके लिए वापस मोटर कंट्रोल में जाना पड़ेगा. गुड गुड क्वेश्चन. ये बंदा कौन है, मुझे सबसे पहले ये बताओ. व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दिस इज वेरी गुड. नाम क्या है? अली. ये बाकियों को समझ क्यों नहीं आती, इनको आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, उनको तो सकता छा गया उन पे, और कुछ लोग तो ऑफलाइन ही हो गए. अच्छा, मैं बताता हूँ. नहीं नहीं, अच्छी बात है, इसको पकड़ना है, ऐसे समझना है. अच्छा, तो ये डायरेक्शन पेन है और दूसरा पीडब्ल्यूएम पेन है. तो लेट मी गो बैक टू दैट एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ये डायरेक्शन पेन है. दिस शुड बी कनेक्टेड विद पिन नंबर 3. Direction is pin number 3. This is direction. So pin number 3, इसमें अली जंपर वायर्स हैं. जंपर वायर्स ये पीसीबी के अंदर होल्स होते हैं. ठीक है. तो सिंपली यहाँ से इसको जंपर वायर IO3 उठाएं, कॉपी, और इधर पेस्ट करें और ये कनेक्ट कर लें. अगर आप ये नहीं चाहते, ठीक है, तो फिजिकली यहाँ से आपको वायर रन करना पड़ेगा, विच इज बहुत अगली दिखते हैं ना. लेट्स से मैं ये डिलीट कर दूं. हाँ, तो प्रोटियस में जब आप जंपर वायर इधर डाल लेते हैं ना, तो इट मीन IO3 इज कनेक्टेड टू हियर. अब समझ आ गई? हाँ. अच्छा, अब दूसरे को IO4 के साथ कनेक्ट करना है, तो एक जंपर वायर दूसरा IO4 वाला ले आते हैं. IO4. और जिन लोगों को टेंशन चढ़ रही है ना, फॉर यू रिलैक्सेशन एग्जाम में आपको ज़्यादा हैवी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी. सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जो आज मैंने गो थ्रू किए हैं, ये आपने समझने हैं. तो ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है. आप वैसे भी टेंशन लेने वाली मखलूक है भी नहीं. तो ये IO4 के साथ कनेक्ट है. ठीक है. तो नाउ अब स्पिन तो नहीं होगा क्योंकि मैंने भी कोड इसमें डंप नहीं किया. बट लेट्स डू इट. अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अभी भी Arduino को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिली कि मोटर को करना क्या है. तो जो पाथ पहले अली ने बताया था कि भाई वो कॉपी करें, हम कॉपी हैं, and I go there and double click on this and I just replace that. And okay, and Bismillahirrahmanirrahim. So अभी इसको ठीक करते हैं. खैर है, अभी भी इसको सिग्नल मिल रहा है लेकिन वो मुसलसल ऑन है. जब रेड हो तो मुसलसल ऑन होता है. दैट मीन इज नॉट वर्किंग. तो लेट्स सी कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि हमें वो PWM सिग्नल मिल क्यों नहीं रहा.
other, oh yeah, I think in our case we could bring this directly and we could replace this source code, and then we would not be, I hope I can build it now. अच्छा, Arduino AVR installed नहीं है, वही वाला मसला है, कोई नहीं, खैर I will write the code there and I will just bring the hex file from there. अब देखते हैं कि ये मसला क्या दे रहा है. तो पिन नंबर 4 is my output pin, उस पे मैंने मोटर स्पीड दिया 128 but it's not spinning. तो और दूसरे पे मैंने हाई दिया मोटर डायरेक्शन पिन पे 3 पे. मोटर डायरेक्शन पिन इज 3. अच्छा नहीं, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है. एंड नाउ इफ आई गिव दिस, तो अभी भी ये सिग्नल चेंज नहीं हो रहा. PWM में भी चेंज सिग्नल. तो लेट मी सी कि मसला क्या है. एनालॉग राइट मोटर स्पीड. अच्छा, सो नाउ लेट्स गो टू द ओरिजिनल बुक. ये है पोर्ट बी 20 और हाँ जी. Select the Arduino motor control PWM. Now it will give us some code which I can use there. इन्होंने explain किया हुआ है in a lot detail. I'll put that example there also. Okay, so analog write map, analog write PWM output. PWM output is taking from there and then analog write, yeah, and delay 30 minutes. So we have some, I don't know what's wrong with this. So we got this pin J. वो मोटर डायरेक्शन मैंने हाई किया हुआ है ना, मैं उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है. तो मोटर डायरेक्शन, लेट्स से मैं मोटर डायरेक्शन पे कुछ देते ही नहीं हूँ. आई डू दिस, ठीक है. मोटर डायरेक्शन पिन पे मैंने कुछ भी नहीं दिया. वैसे ये बात आपकी सही है. लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल मोटर डायरेक्शन कोड. एग्जांपल 1, मोटर कंट्रोल और मोटर डीसी मोटर में लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कोड के ये पीबी 3 पे और 4 पे. तो 3 पे क्या दे रहा है और 2 पे, सॉरी, अच्छा 3 and 2 इस पे क्या दे रहे हैं. सो ही इज गिविंग द सेटिंग द डायरेक्शन, he is sending this on this, and then he is giving the PWM duty cycle, and that's it. So that's exactly what I'm doing also. Let me bring in, इसको ठीक करना है. या अभी चूंकि हमारा टाइम बहुत हो गया, तो I will fix this and send you a video. Will that be okay? हाँ जी, अभी इसको एंड करते हैं, ठीक है. मैं ये ठीक करके फिर आपके साथ शेयर कर लूँगा. अभी समराइज करते हैं कि हमने आज किया क्या है. तो we went through very basics of the microcontrollers. We went through the basics of what are the microprocessors and microcontroller, what's the difference between them. हम microcontroller पढ़ क्यों रहे हैं? So we are using it mostly for control, and it is mostly used for control. You could use a PLC also, but sometimes the project is small and having a PLC is very expensive. 30,000 40,000 की बातें हैं. Microcontroller की IC आपको when you get mature और आपको लग जाए कि मेरा प्रोग्राम perfectly काम कर रहा है, you don't even need the Arduino board, you just need this chip.
इसके लिए आप अपना पीसीबी भी बना सकते हैं. एंड दिस चिप बाय इटसेल्फ कम्स इन लाइक 300 और 400 रुपीज़. ठीक है, 400-500 रुपये की चीज़ है, तो कहाँ पे 30-40 हज़ार और कहाँ 400-500. तो अगर आपने बहुत छोटा कुछ कंट्रोल करना है तो दिस इज़ योर गाय. ठीक है. इसके अलावा वी डिड इज़ वी categorize devices, we define microcontrollers. मैं आपको एक बुक भी अपलोड करूँगा जो मैंने शुरू में खोला था, but I did not follow that much, but I'll upload it to the Google Classroom. ठीक है. अभी कोई क्वेश्चन हो. अच्छा, जो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे वो एच ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल. पीडब्ल्यूएम का कॉन्सेप्ट है, किस तरह पीडब्ल्यूएम से एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है. यू शुड नो these things. ठीक है जी. अभी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, देन विल एंड इंशाल्लाह. हाँ जी. So there is a lot of material available on this on website. अगर आपको थोड़ी सी हॉबी है, शौक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि ये स्किल आजकल सब लोग सीख रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में सामने आ जाते हैं फ्यूचर में. यू नेवर नो, किसी इंटरव्यू में, आपके सीवी में, किसी उसमें इट लुक्स गुड, क्योंकि ट्रेंडी है ये चीज़ें आजकल, इनका ट्रेंड है. स्कूल के बच्चे तक इसको सीख रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू. ठीक है. चलें, if you don't have question then I'll stop here. If there is any question then let me know. चलें जी. ओके, गुड लक इंशाल्लाह. एग्ज़ाम में अगला वीक आई थिंक आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीक है, तो विल नॉट बी हैविंग क्लासेस. लेकिन अगर गूगल क्लासरूम में आपके क्वेश्चन पोस्ट होते हैं तो आई पर्सनली रिस्पॉन्ड टू दैट. ठीक है. आई विल बी वेरी बिजी नेक्स्ट वीक, लेकिन आई विल ट्राई टू गेट टू योर आंसर्स, क्वेश्चंस. और दूसरी बात ये कि I'm in the process of making the final exam, तो it's just मिड का कोर्स भी थोड़ा आएगा, बाकी ज़्यादातर जो है ना it's about what we did. मैं फयाज से भी पूछूंगा कि what he has included, what he has covered, लेकिन if not much then obviously जो आज हमने पढ़ा है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन, माइक्रो कंट्रोलर की यूजेस प्रोसेस कंट्रोल में, what is a microcontroller, what is a PWM technique, analog to digital conversion, digital to analog conversion, एक बेसिक प्रोग्राम. इतना जितना आप देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी वेरिएशन, once it's fixed I'll send it to you, and उसमें मुख्तलिफ आपको फिर चेंज करने को क्या कहा जा सकता है. सिर्फ वैल्यूज़ आपने चेंज करनी है, पूरे का पूरा प्रोग्राम आपने नहीं लिखना. और माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में फ़र्क, माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी में फ़र्क, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर में फ़र्क. अगर कंट्रोल के लिए आपको इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ जाए तो हाउ वुड बीइंग एन इंजीनियर यू प्रेफर microcontroller over a PLC or a PLC over a microcontroller. These are the decisions which they expect from you being industrial engineers. बहुत ज़्यादा हार्डकोर टेक्निकल नहीं, लेकिन ओवरऑल जिस हद तक जितना मैंने समझाया है. ठीक है. इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक पोस्ट कर दूंगा. ठीक है. चलें चलें, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.